In this video, we will do remaining question of chapter 1 of economy. In previous video, we have done from 2025 to 15. There are certain other important questions that I feel that one must do, and that is why we are doing it. And certain theory portion that I feel is important will also be taught in this video. चलिए देखते हैं. The term national income represents the gross national product at market price minus depreciation. तो सबसे पहले हमको समझना है ये नेशनल इनकम ही क्या होता है. तो देखो जी, नेशनल इनकम NI. नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, इससे पहले समझना होगा नेट नेट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और उससे पीछे की चीज़ें. तो स्टार्ट करते हैं, जीडीपी से ही कहानी शुरू करते हैं. जीडीपी क्या होता है? बहुत ही सिंपल कहानी है जीडीपी. चैप्टर पढ़ लेना ऑफ तमिलनाडु एनसीईआरटी, देन यू विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड दिस वीडियो बेटर. देखो जीडीपी क्या होता है? जीडीपी इज मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. ठीक है, सो दिस इज प्राइस, दिस इज व्हाट एंड दिस इज वेयर. सो ये है जीडीपी. ये तो थियोरेटिकल है. नाउ इन फॉर्मूला टर्म व्हाट इज जीडीपी? तो जीडीपी इज इक्वल टू market value of all the things that the private individual have consumed. So all the Indians in private capacity, whatever they have consumed, it will come here. Whatever we have purchased in and whatever price we have given, that would be C, that is consumption. Then whatever, everything we will not consume, we will invest also, and such private investment is known as I. So this will include investment on capital goods, investment on residential commercial properties और construction, investment on inventories. तो ये सारी चीज़ें हैं, चैप्टर ज़रूर जाके पढ़ना. So this is I, investment private. This is C, consumption private. Plus government will also produce something, government will also purchase something. So this is government consumption and investment. ठीक है, plus whatever we have produced, we might not be able to consume everything, hence we're exporting. So export. But we are investing or spending money on things that are not been produced in India, but we are purchasing them. Those come into import, and that is why we subtract import. So that would be GDP would be C is for consumption, I is for our investment, G is for government consumption plus investment plus export. And import, since we have consumed that import, but its origin is not in India, hence we will subtract it from GDP. This is the formula of GDP. C plus I, G plus X minus M. ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, बेसिक यही है. अब देखते हैं GDP हमको पता लग गया. From GDP, if we subtract depreciation, whatever you have, let's just suppose you have a scooty and this is produced in India, and the value of this scooty will depreciate over time. We will depreciate value of scooty, whatever, this is like 80,000 rupees. So after some point of time, it will be 50,000 rupees. Let's just suppose in 6 months, the value would be this in second hand market. So this depreciation of scooty would be known as, and this is your GDP. India has just produced one scooty, as a socho. And if this GDP of India is 80,000, the scooty has depreciated, hence GDP of India would be 50,000. नहीं, तो इसको एक टर्म नहीं बोलते हैं, GDP नहीं बोलते हैं इसी चीज़ को. Depreciation of product and services after a point of time will be calculated by the name known as NDP, the net domestic product after depreciation. इससे GDP minus depreciation would be net domestic product. स्कूटी 80,000 से 50,000 पे पहुंच गई है, ये बात ध्यान रखनी है. नेट में क्या होता है, ठीक है. अब देखते हैं यहीं से GDP से एक और बात निकलती है. GDP से एक बात निकलती है, वो है GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. अब यहाँ पे देखो, बस एक नेशनल चीज़ है. इसका क्या मतलब है कि वॉट एवर गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय इंडियंस, वेदर इन इंडिया और अब्रॉड, वुड बी नोन एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. तो इसको आपको समझना है. और जो भी गुड्स foreigners are producing in India, that would be minus from this. So gross national product is whatever goods Indians have produced, whether in India or abroad. So it would be equal to GDP plus whatever we have produced outside India, so Indians abroad, and whatever foreigners have produced in India, foreigners in India. ठीक है, इसको cumulatively we will call this net factor income from abroad. ये बात करेक्ट होगी. ये फैक्टर इनकम क्या है, इसको कमेंट में बताना.
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ इनकम, इसको बताना मुझे क्या है, नहीं अगर आ पाएगा देन आई विल टेल। तो ये हो गई अपनी कहानी, जीएनपी हो गया। अब एक और कहानी है, इसी जीडीपी से निकलता है, एक निकलता है जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब क्या होता है ये जीवीए? देखो जी, देयर इज अ केक दैट वी वांट टू मेक अ केक। इन केक we will include 3 ingredients. One would be cream, one would be bread, and one would be oven. ठीक है, to bake the cake. Cream is ₹10, bread is ₹5, oven, one cake price would in oven would be 1. So this is ₹16. ठीक है, but the final price of this cake would be ₹20. Total input cost and final price, there's a difference. Why is the difference? Because the baker is good, so he's adding value to these items, and this value addition is known as GVA. ठीक है, इसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं। इसमें एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, इफ़ यू आर हैविंग अ कोल्ड ड्रिंक, यू गो टू अ शॉप एंड हैव अ कोल्ड ड्रिंक, ₹20 विल पे। ठीक है, बट सेम कोल्ड ड्रिंक इफ यू गो इन अ रेस्टोरेंट एंड हैव इन अ ग्लास, in AC, on a sofa, and somebody is coming there to serve you, this ₹20 they will cost ₹50. This is the value added that restaurant added to this cold drink. तो इस तरीके से होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड simply means difference between final cost and cost of input or cost of component। ठीक है, ये होता है, that is monetary value of product excluding intermediary goods. So these are intermediary goods, this is monetary value. Remove this and you will reach to GVA. So GVA, cake is 20 at final price, input price is 16, बीच में आपका GVA है। ठीक है, करेक्ट हो गई। इन जीडीपी टर्म्स हाउ डू वी राइट जीवीए? तो उसको भी बहुत सिंपली तरीके से लिख सकता हूँ, जीवीए इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये फैक्टर कॉस्ट का क्या मतलब हुआ कि जब सामान फैक्ट्री पे बन के तैयार है तब उसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो देखो, यहाँ मैंने फैक्टर कॉस्ट लिख दिया, यहाँ मैंने मार्केट प्राइस लिखा। लेट जस्ट सपोज सम आइटम केक इज रेडी एट योर शॉप फॉर ₹20। ठीक है, नाउ if when it will go to market, then tax will be imposed on it. The government of India will give some subsidy that you are producing, you are a manufacturer, you are helping people get employment, and hence will give you some subsidy. Let's just suppose electricity subsidy. So he will be taxed at ₹5 and subsidy he will get 2. So ₹23 would be market price. So whenever you want to move from factor cost to market price, you will add tax minus subsidy. So now GVA, again story. 3 definitions are there for GVA. One is normal definition, final price minus cost of input. ठीक है, और one can write monetary value of product excluding intermediary goods. ठीक है, तो monetary value minus intermediate goods. ठीक है, नोट्स में है सब कुछ, अभी दिखाता हूँ। देन GVA इन GDP टर्म्स इट इज GDP एट फैक्टर कॉस्ट। इसको कैसे लिख सकते हो आप? GDP एट मार्केट प्राइस माइनस, क्योंकि हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, GDP एट फैक्टर कॉस्ट जाना है, मार्केट प्राइस पे हम ऑलरेडी हैं, ये मार्केट प्राइस है, तो यहाँ से उल्टा जाना होगा तो साइन चेंज करेंगे, माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। तो ये आपका GVA हो गया। करेक्ट बात है, चैप्टर रीड करना तभी समझ में आएगा, नहीं तो आएगा नहीं समझ में। तो ये हो गया। अब आपने फिर से देखते हैं उसकी कहानी को, GDP से क्या क्या आ रहा है बाहर? GDP माइनस डेप्रिसिएशन, GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, GDP से आ रहा है आपका GVA। ठीक है, तो यहाँ पे करना है हमको GNP, यहाँ पे करना है आपको NNP। तो ये 4 डेफिनेशन आपको यहाँ से समझ में आनी चाहिए। हमने एक और चीज़ देखते हैं अभी यहाँ पे देखो, इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम ग्रॉस टू नेट, you will have to subtract depreciation. If you want to go from domestic to national, you will have to add net factor income from abroad, and from factory cost to market price these. इसको याद रखना, whenever you see a definition they are saying gross net, change करना होगा, minus करना depreciation. Whenever you see domestic, add net factor income from abroad and you will reach to national. Whenever you see factory price, add tax minus subsidy, you will reach to market price। ठीक है, तो ये तो कहानी हो गई।
अब एक बार पॉज करो और इसको रीड करना, जीडीपी के मतलब क्या है, ठीक है। देन यहाँ पे जीएनपी, ठीक है। इसमें अब एक और टर्म बच गया है जीएनआई, इसको मैं बताता हूँ। अब एक और टर्म आता है जीएनआई। जीएनआई क्या है? ग्रॉस नेशनल इनकम। नेशनल्स को क्या पैसा मिला है, तो नेशनल्स का पैसा जीडीपी से कैलकुलेट होगा प्लस वॉट एवर रेमिटेंसेस वी आर गेटिंग. So this is known as GNI. This GNI is being used by IMF to calculate economic growth. तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब यहाँ से निकलता है आपका NNI माइनस डेप्रिसिएशन और GNP से निकलेगा आपका NNP, ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई। फिर से इस कहानी को लिखते हैं सारे फॉर्मूले के साथ। GDP, सेकेंड NNP, थर्ड GVA, fourth your GNP, fifth NNP, sixth GNI, ठीक है। चलो GDP इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, करेक्ट। NNP is GDP minus depreciation. GVA is equal to GDP at factor cost, which is equal to GDP minus tax प्लस सब्सिडी, ठीक है। GNP इज इक्वल टू GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NNP इज इक्वल टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन। GNI इज इक्वल टू GDP प्लस रेमिटेंस, ठीक है। पॉज करो, खुद से इसको लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लिखना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे नेशनल इनकम क्या होता है, NI। तो नेशनल इनकम बहुत सिंपल टर्म्स में, पहले वर्ड्स में समझो नेशनल इनकम क्या होता है। Total of income payment made to factors of production. Total income payment made to factors of production is national income. Factors of production क्या है? Land, labor, capital and entrepreneurship. इनको क्या टोटल पेमेंट मिली है, ये आएगा आपका नेशनल इनकम, ठीक है। दिस नेशनल इनकम, इनको ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एट फैक्टर कॉस्ट पे ही मिलेगा नेशनल इनकम, हेंस और डेप्रिसिएशन माइनस करके मिलेगा। तो हेंस नेशनल इनकम इज इक्वल टू NNP एट फैक्टर कॉस्ट। सबसे पहले ये ध्यान रखना है नेशनल इनकम के बारे में। अब इसी से आगे बढ़ते हैं। NNP एट फैक्टर कॉस्ट तो बहुत सिंपल है, NNP एट मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन बोलो प्लस सब्सिडी, ये खत्म होगी कहानी। अब आगे देखते हैं NNP एट मार्केट प्राइस को और क्या लिखा जा सकता है। वी कैन राइट इज GNP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको हटाते हैं। सेवेंथ नेशनल इनकम विच इज इक्वल टू NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। इसको और कैसे लिखा जा सकता है, NNP माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी, और कैसे लिखा जा सकता है GNP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका नेशनल इनकम। अब हम थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं, फिर और थ्योरी करेंगे, नहीं तो बोर हो जाओगे। अब देखो जी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पॉज करके खुद से करने की कोशिश करना, लिखना अभी जो लिखवा है 8 फॉर्मूले। क्या है जी, नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू GNP की बात कर रहा है, GNP, ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन GNP माइनस D, माइनस D करेंगे N आ जाएगा, तो NNP ये तो है, ठीक है। और GNP अगर नॉर्मल लिखा होता है इसका मतलब मार्केट प्राइस ही होता है, तो NNP एट मार्केट प्राइस है ये वाली कहानी। नेक्स्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP माइनस डेप्रिसिएशन NNP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो जी ऑलरेडी इसमें नेशनल है, सो इसकी आवश्यकता नहीं है, बिकॉज इफ वी ऐड दिस अगेन टू दिस देन इट विल बी डबल काउंटिंग, ये नहीं करना है हमको, इसी वजह से दिस इज रॉन्ग, दिस ऑप्शन इज इटसेल्फ रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, दिस इज GNP माइनस डेप्रिसिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, यस यही है आपका नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज इक्वल टू NNP एट फैक्टर कॉस्ट विच इज दिस, ठीक है, ये करेक्ट है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगेन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट
माइनस नेट फैक्टरिंग, अगेन नेट है, नेशनल यहाँ पे है, यहाँ पे नेशनल, डबल काउंटिंग होगी, ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। सो आंसर वुड बी सी। आई होप ये कर पा रहे होगे आप। डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये, बट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर होगी देन ओनली दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन डू। चलिए जी, नो नेक्स्ट मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोला गया है, नेशनल इनकम इज, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेशनल इनकम इज NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो इट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दिस इज बी आंसर, ठीक है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्या है, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू, देखो ये एग्जैक्ट लाइन आपकी NCERT ऑफ तमिलनाडु से आई है। ये देखिए क्या लिखा है, नेशनल इनकम मीन्स द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये GDP का इसका मतलब है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से सवाल पूछा गया है, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू दिस। क्या पूछा गया है, द नेशनल इनकम of a country for a given period is equal to sum of personal income of all individuals, नहीं जी, sum of total consumption and investment expenditure, नहीं जी, money value of all final goods and services, yes, D is the answer. Next, in an open economy it means that one can do export and import, तो ध्यान रखना। The national income of the economy is, so here also national income means GDP, CIG X minus M, C would be the answer. नेक्स्ट क्या पूछा गया, अगेन अच्छा क्वेश्चन है वाला 1996 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। यू सी, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट इज लॉन्ग टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म bottlenecks of the economy needs to be addressed to provide a structural solution, ठीक है। स्टेबलाइजेशन मीन्स प्राइस स्टेबलाइजेशन, ग्रोथ स्टेबलाइजेशन, इस चीज़ की बात हो रही है, बस इतना दिमाग में रखो, देखते हैं होता है कि नहीं। द स्टेबलाइजेशन इज अ ग्रेजुअल मल्टी स्टेप प्रोसेस वाइल स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट क्विक नहीं है, गलत, स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, लॉन्ग टर्म प्रोसेस। स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट इज अ ग्रेजुअल मल्टी स्टेप प्रोसेस वाइल स्टेबलाइजेशन इज अ क्विक, ये ठीक लग रहा है। स्टेबलाइजेशन स्ट्रक्चर वेरी सिमिलर, नहीं जी। स्टेबलाइजेशन मेनली डील्स, पॉज करके खुद करना, ठीक है, फिर वीडियो अनपॉज करके देखना। स्टेबलाइजेशन मेनली डील्स विद द सेट ऑफ पॉलिसीज विच आर टू बी इम्प्लीमेंट, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला नहीं, इसका आंसर तो बी होना चाहिए, बी है। स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म, स्टेबलाइजेशन शॉर्ट टर्म। स्ट्रक्चर इज इंटायर इकोनॉमी सप्लाई की बात करता है, स्टेबलाइजेशन टॉक्स अबाउट डिमांड, गिविंग रुपीज इन द हैंड्स ऑफ पीपल, स्टेबलाइजिंग द इन्फ्लेशन ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसे तो GDP होना चाहिए, बट ए आंसर मत मारना, थोड़ा देखना। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज माइनस डेप्रिसिएशन, नहीं जी। नेट नेशनल प्रोडक्ट दैट इज NNP, दैट इज GNP माइनस डेप्रिसिएशन। पर कैपिटा प्रोडक्ट और पर कैपिटा इनकम, दिस इज द गुड मेजर, बेटर मेजर, तो डी is का आंसर। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देख लो, इंडिया यहाँ आता है अराउंड 25-2400 के आसपास होगा, एक बार चेक करना इसको, इंडिया का पर कैपिटा इनकम क्या है अ ईयर, तो लो मिडिल इनकम कंट्री में आता है इंडिया। नेक्स्ट क्या है, द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम एट करेंट प्राइस इज टूडेज प्राइस इज हायर देन द पर कैपिटा इनकम एट द कांस्टेंट प्राइस। अब क्या मतलब है करेंट प्राइस का एंड कांस्टेंट प्राइस का, देखो करेंट प्राइस क्या होता है, लेट जस्ट सपोज वी आर इन लिविंग इन 2025 and let's just suppose India just makes cakes. So India makes 10 cakes and the price of each cake is 100 rupees. So it means GDP is rupees 1000, ठीक है। This is your current price, this is quantity and this is price. Let's just suppose in 2012, that is the base year for India, India used to make 10 cakes only but the price was 50, hence our GDP was 500 rupees, ठीक है। This is your base price or your constant price, ठीक है। इसकी क्यों ज़रूरत है, if we knew the constant price and if we know the quantity of today's price, then we will know that is the increase in GDP due to increase in production or just due to increase in price, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, that is why we need this constant price, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, the per capita income at current price is higher, तो per capita income current price is higher, ठीक है, than the per capita income at constant price, per capita income at constant price, तो
कांस्टेंट रियल एंड दिस इज नॉमिनल, ठीक है। प्राइस बिकॉज द लैटर टेक्स इनटू अकाउंट द रेट ऑफ, लैटर टेक्स इनटू अकाउंट कांस्टेंट प्राइस, ये national nominal price takes into account growth in population, increase in price level, yes, growth in money supply, नहीं, इसका आंसर भी है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। पॉज करके सारे क्वेश्चन करना इकोनॉमी के। इकोनॉमी बहुत आसान होती है, बट इफ़ यू नो द वोकैबुलरी ऑफ इकोनॉमी इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू डू इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स विल नेसेसरली हैव टू हैपन, ठीक है, होगा ही होगा। देखते हैं, देर इज अ टेक्निकल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, टेक्निकल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी तभी होगा इफ द वर्ल्ड इज गोइंग टेक्निकली राइट, एंड इफ इंडिया इज नॉट, देन इंडिया विल नॉट ग्रो। तो ये तो नहीं, नेसेसरी नहीं है। पॉपुलेशन ग्रोथ विच इज करेक्ट, बट इफ योर पॉपुलेशन इज एजुकेटेड, इफ योर पॉपुलेशन इज स्किल्ड, then incorrectly skilled, whatever the demand of the market is, those skills one should have, this is wrong. If there is capital farming, ये ठीक लग रहा, if there are more number of machines in India, no, more goods would be produced, we do not have to import goods, but at this point of time in India we have to import machines as well, तो ये इतनी बड़ी दिक्कत है। if there is capital formation, there is high chances the economic growth will happen. The volume of trade grows in the world, if the volume of trade grows in the world, and if India does not have enough product to facilitate that export or facilitate that volume, then हमें नहीं होगा, हम एडवांटेज ही नहीं ले पाएंगे ग्रोइंग कंजम्पशन इन द वर्ल्ड का, अगर हमारे पास वो प्रोडक्ट ही नहीं हुआ। तो ये गलत हो गया, आंसर वुड बी सी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में CDS CAPF की वीडियो में डालूंगा, डू वॉच इट। अब हम देखेंगे कुछ और टर्म्स जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर्सनल इनकम एक और टर्म है, देखो क्या होता है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम इज बहुत सिंपल टर्म्स में पर्सनल इनकम समझो कि जितने भी नेशनल इनकम है, जितने भी लोगों का इनकम है, वही पर्सनल इनकम होना, ऐसा होना चाहिए ना। ऑल पर्सनल इनकम ऑफ ऑल द पीपल शुड बी इक्वल टू नेशनल इनकम, ऐसा ही होना चाहिए। नेशन का पूरा इनकम शुड बी इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द पीपल लिविंग इन इंडिया। तो पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम। मगर पर्सनल इनकम ऑल्सो अक्रूज फ्रॉम ट्रांसफर्स, कुछ चीज़ें पैसे मिलते हैं इंडियंस को, रेमिटेंस के थ्रू ट्रांसफर्स होते हैं, तो इस वजह से आपका ये ट्रांसफ़र पेमेंट, या फिर गवर्नमेंट भी ट्रांसफ़र करती है इन फॉर्म्स ऑफ सब्सिडी, स्कॉलरशिप, तो वो सब भी ट्रांसफ़र पेमेंट है। तो पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट माइनस, देखो वी हैव इन्वेस्टेड इन सम कंपनीज, लेट जस्ट सपोज ₹100, and the company is making profit of ₹20, that is 20% profit, hence this 20% should be given to us, ठीक है। but the company does not give this entire profit to us, it keeps ₹5 to itself, that is we get only ₹15 and they keep ₹5, so this ₹5 is known as undistributed profit, UT. so this we were supposed to get this profit but we did not get it, इसलिए इसको हम माइनस कर देंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सेकेंडली, कंपनी earns a lot of profit again, but out of this profit company pays tax. If the company wouldn't have paid tax, then this tax money would have been accrued to the company and company would have benefited from it, and in turn we would get more dividend. But since they are paying tax and it was that we were supposed to get this, तो इसको भी हम माइनस करेंगे, तो प्लस ये हो गया। थर्डली, कुछ इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, अगर हमने लोन लिया है देन वी विल पे this interest to banks, hence it was supposed to be our personal income but we are paying interest. If we are given a loan to government of India, then they will pay us interest, so that will be on. तो इसको मैं कर देता हूँ माइनस में, इसको प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हो, इसको ऐसे करके प्लस माइनस एनीथिंग यू कैन डू टू नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड टू द हाउस होल्ड, ये है पर्सनल इनकम। तो अब फिर से देखेंगे पर्सनल इनकम को, 5 कॉम्पोनेंट है इसमें। नेशनल इनकम का कॉम्पोनेंट है, ट्रांसफ़र पेमेंट का है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का है, कॉर्पोरेट टैक्स का है, एंड नेट इंटरेस्ट पेमेंट टू द हाउस होल्ड। सो दिस वुड बी NI प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट, देन माइनस योर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, देन UT, देन योर कॉर्पोरेट टैक्स, एंड देन योर नेट इंटरेस्ट टू द हाउस होल्ड। तो ये पर्सनल इनकम का फॉर्मूला होता है, इसको ज़रा ध्यान से देखो। 4th वाला पॉइंट है। अब हम आगे चलते हैं, 5th वाला पॉइंट देखते हैं। अब क्या है, पर्सनल इनकम तो तुम्हारे पास आ गया, बट वॉट एवर इनकम यू हैव गॉट यू विल नॉट इन्वेस्ट ऑल ऑफ इट और यू विल नॉट बी एबल टू कंज्यूम ऑल ऑफ इट। क्यों ऐसा है, तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्या है कि पर्सनल जो इनकम है उस पर टैक्स भी तो दोगे, तो दैट इज पर्सनल टैक्स पेमेंट।
प्लस एक और पेमेंट आप दोगे, कभी आपका चालान कट गया, सो दैट वुड बी नॉन टैक्स पेमेंट. So this three components will constitute your personal disposable income. In general मतलब ही क्या होता है personal disposable income का? The amount available for the household to consume. तो whatever amount you have left with after giving tax payment and non-tax payments, those will come into your personal disposable income. ठीक है. अब personal disposable income को ऐसे भी देख सकते हो, जितना भी आपके पास पैसा है, you will not consume all of that money. You will consume some of it and you will save some of it. Hence, your saving plus consumption would be equal to personal disposable income. यहाँ जाओ, फिफ्थ वाला देखो आप कैसे लिखा हुआ है, बहुत ही आराम से इसको रीड करना. कोई कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में डालना, देन आई विल मेक स्लो वीडियोस, क्योंकि इकोनॉमी को समझने के लिए थोड़ा समय ज़्यादा लगता है. डू रीड दिस चैप्टर एंड देन इसके बाद CDS की वीडियोज़ आएंगी इसी चैप्टर से, एंड CAPF की आएगी. डू वॉच इट, तब आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी. अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. किसी को भी बैच ज्वाइन करना होगा तो मुझे मैसेज कर सकते हैं. बाय बाय.